Hello. Good morning, sir. Very Good good morning, sir. morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good Very morning, good sir. morning. Good morning, sir. I am going to start the class. So roll call, please. So roll one. Present, sir. इतना धीरे से बोलोगे सुनाई देगा? Present, sir. लगता है हम ही को तेज करना होगा. Roll two, Present, sir. three, Present, sir. 4, Present, sir. 5, Present, sir. 6. Sir. Roll six, 7. Present, sir. Roll 7. Okay. 8, Present, sir. 9, Present, sir. 10, Present, sir. 11. Roll 11. 12, Present, sir. 13. Roll 13. 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, Present, sir. 18. Roll 18. 19, Present, sir. 20, Present, sir. 21, 21, 22, 23, 24, Present, sir. 25, Present, sir. 26, Present, sir. 27, Yes, sir. 28, Present, sir. 29, 29, 30, Present, sir. 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, 38, 39, Present, sir. 40, Present, sir. 41, 41. 41 present, sir. तो बोलता नहीं है. नहीं, sir, 42, Present, sir. 43, Sir. 43, Present, sir. 44, 44, 45, Present, sir. 46, 47, 48, Present, sir. 49, Present, sir.
80, Present, sir. 81, Sir. 52. Are all 52? 53, Present, sir. 54, 55, Present, sir. 56, Present, sir. 57, Present, sir. 58, 58, 59, Present, sir. 60, Present, sir. 61, 62, 63, Present, sir. 63. 64, 64 present, sir. 65, Present, sir. 66, Present, sir. 67, Present, sir. 68, 68, 69, 16 present, sir. 70, 70 present, sir. 71, 72, Present, sir. 73, 74, Present, sir. 70, 61 sir, network खराब होता है सर. 75, 75 present sir. सर 76, 61 सर, नेटवर्क खराब तो नहीं हो, माइक ऑन होगा. Nitish Kumar, your roll number? Nitish, 61 your roll sir. number? 61 सर, नीतीश कुमार. कितना? 61 61. उसमें बोला क्यों नहीं? Sir, all सर. 44. नेटवर्क नहीं, सर, बाद नेटवर्क. में, लास्ट में 77, 76, 76 present, sir. 77, Present, sir. 78, 78, 79, Present, sir. 80, Present, sir. 81, 82, Present, sir. 83, 83, 84, Present sir. 85, Present, sir. 86, Present sir. 87, Present, sir. 87. 89, 89, 90, Yes, sir. 91, Present, sir. 92, Present, sir. 93, Present, sir. 94, Present, sir. 95, 95, 96, 97, 98, 99, Present sir. 100, Present, sir. 101, Present sir. 102, 102, 103, Present sir. 104, Present sir. 105, 106, Present, sir. 107,
107. sir. 107. 108. sir. 109. Present, sir. 110. Sir, 109 present, 110. sir. कितना? 109. ठीक. 110. 107%. Okay. 111. Yes, sir. 112. All सर वो प्रेजेंट 112. है, माइक काम नहीं कर रहा है। 112. ठीक है. ओके. 113. Present, sir. 114. Present, sir. 115. Present, sir. 116. Present, sir. 117. Roll 117. 118. Present, sir. 118. Present, sir. 118 है. Yes, sir. Present. Present. Okay. 119. Present, sir. 120. Yes, sir. 121. Yes, sir. 122. Present, sir. Last 122 na? Yes, sir. Or anybody left? Sir, 44 Roll present. 6. Roll 6. Sir, roll number 97, sir. Roll number 97. Okay, chalo. Sir, roll number Yes, 11. 98, sir. Roll 11. और Sir, 98, sir. 98. 44, sir. 24. चलो हाँ. 24 नहीं, sir. 44. कितना? 44. 44. चलो 44 हाँ. और anybody? ठीक. हेलो। हाँ बोलो. हाँ सर, मेरा अटेंडेंस छूट गया सर। अटेंडेंस छूट गया तो हम क्या 71 रोल करें नंबर। बोलो. हाँ 71 रोल नंबर सर। कितना? 71। 71. और क्या करेंगे ये 1 आवर केवल अटेंडेंस से चलेगा. नो सर। तब रुक जाओ, तुम लोग कुछ मटेरियल भेज रहे हैं तब ना उसको ठीक होगा.
So yesterday we already discussed about kinematic link or element and kinematic pair, types of link, types of kinematic pair I have already discussed. And today we will discuss about kinematic chain. देखिए भेजे हैं आपको 4-5 पेज भेजे हैं, उसमें काइनेमेटिक चेन है लास्ट में, ठीक है ना। तो काइनेमेटिक चेन क्या है? ये काइनेमेटिक चेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर joined in such a way that the relative motion between them is completely constant. नहीं, two equation for lower pair are available to determine whether the assemblage of link and pair form the kinematic chain or not. The equation as given as L equal to 2p minus 4. नहीं, so kinematic chain is a combination of kinematic pair joined in such a way that the relative motion between them is completely constant. So what is completely constant? नहीं, so completely constant motion, completely constant. So the motion in a definite direction, नहीं, so motion in definite direction is known as completely constant. नहीं, definite direction मतलब स्क्वायर जो है, स्क्वायर बार है मूविंग इन ए स्क्वायर होल and a shaft with collar at its end moving in a round hole. नहीं, तो क्या है कि स्क्वायर है, कोई स्क्वायर आपका जो है बार है या शाफ्ट है, तो क्या है कि वो अगर मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन ऑलवेज फिक्स रहेगा। नहीं, अगर वही जो शाफ्ट है स्क्वायर नहीं है, सर्कुलर है, तो उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं हो सकता, वो रोटेट भी कर सकता है, स्लाइड भी कर सकता है। लेकिन स्क्वायर अगर क्या है कि आपका शाफ्ट है, तो स्क्वायर जो है होल में वो क्या है, डायरेक्शन उसका क्या है, वो रोटेशन नहीं होगा, जब भी होगा स्लाइड होगा। तो इस तरह का जो मोशन है उस दैट मोशन इज नोन एज कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। नहीं, तो काइनेमेटिक चेन में क्या है कि काइनेमेटिक चेन जो है ये क्या है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है कि काइनेमेटिक पेयर है ज्वाइंट इन सच ए वे, जिसमें रिलेटिव मोशन तो होना ही चाहिए, साथ साथ क्या है कि इसका लास्ट लिंक जो है फर्स्ट लिंक से ज्वाइन भी होना चाहिए। नहीं, लास्ट लिंक जो है वो फर्स्ट लिंक से ज्वाइन होगा, और उसके लिए क्या है कि फॉर्मूला है कि ये जो है सेटिस्फाई होना चाहिए L इक्वल टू 2p माइनस 4, वेयर L क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स है, P है नंबर ऑफ पेयर्स है, एंड अनदर इक्वेशन क्या है, इसी इक्वेशन को अगर हम मॉडिफाई करें, अगर ज्वाइंट के केस में तो L इक्वल टू होता है 2/3 J प्लस 2, वेयर J इक्वल टू नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। नहीं, अगर ज्वाइंट के केस में अगर हो तो L इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू J प्लस 2। अगर हम लोग पेयर के केस में देखें तो L इक्वल टू 2p माइनस 4। ये दोनों इक्वेशन में कोई भी सर्टिफाई होना चाहिए काइनेमेटिक चेन के लिए। नहीं, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है तो वो काइनेमेटिक चेन नहीं होगा। नहीं, इफ द एबव टू इक्वेशन आर सेटिस्फाइड द लिंक फॉर्म ए काइनेमेटिक चेन। देखिए उसको भेजा नहीं, आप देखिए कि 3 लिंक है, फिगर में देखिए आप 1.8 का ए जो है उसमें लिंक 1 है, 2 है, 3 है, ए बी सी है। नहीं, तो इसमें क्या है 3 लिंक है, और पेयर कितना होगा, पेयर भी बनाइए, 1 और 2 के बीच में एक पेयर होगा, 2 और 3 के बीच में एक पेयर होगा, और 3 और 1 के बीच में एक पेयर होगा। तो
पेयर हो गया 3, लिंक भी हो गया 3। अब इक्वेशन जो फर्स्ट में पुट कीजिए, देखिए सेटिस्फाइड हो रहा है, p इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 3 को आप जो है 2 से मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। l कितना हो गया, l 3 हो गया। तो 3 इक्वल टू 2 सेटिस्फाइड हो रहा है, बताइए। ये जो है ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल क्या होगा, काइनेमेटिक पेयर होगा नो सर। ना, No, sir. नो। क्योंकि क्या है कि एक तो इसमें क्या है, इसमें देखिए इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, इट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर्स। और इसमें क्या है, लास्ट लिंक जो है 1, ये कनेक्टेड टू क्या है, ये फर्स्ट लिंक जो इसका 1 है, ये लास्ट लिंक कनेक्टेड टू लिंक 3, ये तो है। इट इज ऑल्सो, माने अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल देखिए इसमें फिगर 1.8 का ए में, ये ट्रायंगल जो है इसमें तो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर्स है, ठीक है। इसका लास्ट लिंक 1 फर्स्ट लिंक से कनेक्टेड है, लेकिन रिलेटिव मोशन बिटवीन द क्या है, पेयर्स नहीं है, इसमें मौसम पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा क्या है कि आपका जो दो इक्वेशन बताए हैं कि L इक्वल टू 2p-4 और L इक्वल टू 2/3 इंटू J+2, ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी वो काइनेमेटिक पेयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें अगर P देखिए, नंबर ऑफ पेयर 3 है, 3 है, और नंबर ऑफ लिंक भी 3 है, पुट करके देखिए तो नहीं होगा, 3 इक्वल टू 2 नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या है, ये काइनेमेटिक क्या होगा, चेन नहीं होगा। अब देखिए कि ये आपका क्या है, 1.8 के बी देखिए, नहीं लिंक कितना है, 4 है, 1 2 3 4 ए बी सी डी, नहीं तो इसमें पेयर भी कितना बनेगा, लिंक भी 4, पेयर भी 4। अब पुट कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए, तो 4 रखिएगा तो 8 हो गया, 8 में से 4 घटा दीजिएगा तो 4 हो गया। और लिंक भी कितना, लिंक भी 4, तो 4 इक्वल टू 4। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए क्या है, ये क्या है, ये काइनेमेटिक चेन होगा। अगर ज्वाइंट के केस में भी देखिएगा तो ज्वाइंट भी कितना होगा, ज्वाइंट भी 4 हो गया, पेयर भी 4 हो गया, तो सेकेंड इक्वेशन भी आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर पेयर के केस में चलिएगा तो फर्स्ट इक्वेशन, ज्वाइंट के केस में लीजिएगा तो सेकेंड, दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है दोनों केस। तो ये जो 4 बार चेन मैकेनिज्म, सर इसमें ज्वाइंट कितना होगा, 1 या 4? किसमें, 1.8 का बी में सर। 1.8 का बी में ज्वाइंट 4 होगा ना, एक 4 का ज्वाइंट, तो सर सर क्वाड्रेट देखो सर तो उसमें पुट ज्वाइंट करके देखो, नहीं हो रहा है सर। हेलो, तो ज्वाइंट के बारे में थोड़ा सा सर बता दीजिए। नहीं वो 2/3 है, 3 डिवीजन में।
तो L इक्वल टू तुम्हारा जो है, L इक्वल टू क्या है, 2/3J+2 है ना। इक्वेशन यही है ना क्या। यस सर। J का वैल्यू 4 रखोगे तो क्या होगा, 4 + 2 6 हो गया, और 2/3 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया, 4 हुआ 4। कि नहीं हुआ। यस यस। तब L कितना है, 4 है सर। तब 4 इक्वल टू 4 सेटिस्फाइड नहीं हुआ। हो गया सर। तब इसमें क्या बताना है, कुछ कॉम्प्लिकेशन रहता है तब ना। नंबर ऑफ ज्वाइंट भी देखो, ये 1.8 बी का ए पर एक ज्वाइंट है, बी में एक ज्वाइंट है, सी में एक ज्वाइंट है, डी में एक ज्वाइंट है। नंबर ऑफ ज्वाइंट भी 4 हो गया। लिंक भी गिनोगे तो लिखा हुआ है 1 2 3 4, लिंक भी 4 हो गया। पेयर बनाओगे 1 और 2 के बीच में एक पेयर होगा, 2 और 3 के बीच में एक पेयर हो गया, तो 2 पेयर हो गया। फिर 3 और 4 के बीच में एक पेयर हो गया, 3 हो गया पेयर। अब 4 और 1 के बीच में एक पेयर होगा, तो 4 पेयर हो गया। तो इसमें ज्वाइंट भी 4 है, पेयर भी 4 है, लिंक भी 4 है। तो ये जो हो गया 1.8 जो हो गया, जो बी है 1.8 का, ये 4 बार चेन मैकेनिज्म है, और ये इसको हम लोग कहते हैं ये काइनेमेटिक चेन होगा। और इसमें चूंकि 4 लिंक है इसलिए इसका नाम होता है 4 बार चेन मैकेनिज्म, माने 4 उसमें जो है लिंक। अब फिफ्थ में देखो 1.8 का सी में, इसमें देखो क्या है, इसमें लिंक जो है 1 2 3 4 5, लिंक भी 5 है, पेयर भी 5 है, और ज्वाइंट भी 5 है। अब देखो कि इसका ये काइनेमेटिक चेन होगा कि नहीं, इसको हम लोगों को नहीं ये करना है, डिटेक्ट करना है कि ये काइनेमेटिक चेन है कि नहीं। सर नहीं होगा सर। नहीं होगा, क्योंकि अब देखो दोनों इक्वेशन में पुट करके देखो, तो ऐसे टेस्ट करके देखना होगा, अपने मन से नहीं खाना होगा कि ये काइनेमेटिक चेन है। उसको दो इक्वेशन जो है दोनों में पुट करके देखो। पी का वैल्यू 5 रखोगे तो 5 और 2 10 हो गया, 10 में से 4 चला गया, तो 10 में से 4 चला गया 6 हो गया, इधर L 5A रह गया, तो नहीं हुआ। दूसरा में भी देखोगे पुट करके तो नहीं हुआ। तो ये जो है आपका 1.8 का सी जो है ये काइनेमेटिक चेन नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग बहुत सारा लिंक रहेगा, इसमें थोड़ी है, बहुत सारा लिंक रहेगा, वो लिंक को हम लोग देखेंगे कि कितना लिंक है या कितना पेयर है, निकालेंगे, तब उसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन में। अगर सेटिस्फाइड होगा LHS इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, वो काइनेमेटिक चेन होगा, अदरवाइज काइनेमेटिक चेन नहीं। मैकेनिज्म है उसको तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म लास्ट में हम लोग करेंगे, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म को। पहले दूसरा टॉपिक हम लोग इसमें देखते हैं। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम लोग लास्ट क्लास में भी तुमको डिस्कस किए थे नहीं, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है नहीं, तो यस तुम लोग उस समय कुछ हम लोगों को बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा नहीं, तो इसमें हम लोग आज थोड़ा उसमें डिटेल में तुम लोगों को बताते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम।
नहीं, तो उसमें डिफिनेशन हम लोग बताए थे तुम्हारा। और उसके पहले देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम का पहले तुम्हारा जो उसी पेज में अभी जो भेजे हैं उसमें डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड मैकेनिज्म, उसी पेज में देखो जो पेज नंबर 16 है उसमें है डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड मैकेनिज्म। तो मशीन और मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है दिया हुआ है। इट इज लाइक, मशीन में क्या, इट इज लाइक ए ह्यूमन बॉडी यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क। मशीन में it is like a skeleton of and has defined motion between various links. Second में क्या है, it is practical development of mechanism, it is model of a machine. थर्ड में है it is related to the energy, और इसमें मैकेनिज्म क्या है, it is related to the motion only. फोर्थ में it has many links, it also has दोनों लिंक, तो ठीक है दोनों में ज्यादा होगा, मोर होगा नहीं। मशीन में देखो लेथ है, शेपर है नहीं, और इसमें क्या है इंजन इंडिकेटर है, टाइपराइटर है, मैकेनिज्म, ये सब भी देख लो। मशीन और मैकेनिज्म में क्या डिफरेंसेस है, मशीन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस है। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग लास्ट में भी डिस्कस किए थे। क्या है कि किसी भी सिस्टम या किसी भी मौसम को नहीं, हम लोगों को डिफाइन करने के लिए मिनिमम कितना हमको कोऑर्डिनेट चाहिए, माने कितना हमको मिनिमम चाहिए उसमें नहीं, तो उस जो नंबर होगा उसी नंबर को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम, minimum number of coordinates required to specify the motion of any system is known as degree of freedom। नहीं, कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या कि जो वैल्यू है, मान ली एक्स है, वाई है, जेड का क्या वैल्यू है, वो कितना चाहिए हमको, मिनिमम वैल्यू कितना चाहिए, नंबर कितना चाहिए, माने उस मौसम में कितना हमको मिनिमम चाहिए, जो नंबर होगा दैट नंबर इज नोन एज डिग्री। अब देखो कि कोई इसमें दिखाया है फिगर, देखो उसमें 1.23 लिंक है ए और बी, ठीक है ना, लिंक है ए और बी, देखो उसमें फिगर में दिखाया है, वो प्लेन एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तुम लोग तो देख करके बता दोगे, लेकिन कैसे होगा बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो। कोई भी मान लो कि लिंक है, कोई भी स्पेस में नहीं एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट लिंक, बोलो। 2 नहीं 3 होगा, कैसे बोलते हो 2? 3 सर। 3। अब देखो कि कोई भी लिंक है, लिंक में क्या है, कोई लिंक है मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, उसके सबसे पहले किसी पॉइंट को हमको लोकेट करना है, तो कोई पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लिए, जैसे इसमें पॉइंट कंसीडर कर लिया ए। अब इसको हमको पता करना है कि इसका स्पेस में क्या पोजीशन है, तो हमको क्या चाहिए, एक तो इसका चाहिए एक्स ए चाहिए, दूसरा हुआ एक्स वाई चाहिए, माने उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, वो अगर मालूम कर लेंगे हम लोग नहीं। यस। और क्या चीज चाहिए, थीटा सर। और थीटा चाहिए उसको नहीं, कि कितना एंगल पर वो है, तो हमको एक्स ए चाहिए, वाई ए चाहिए और थीटा चाहिए। ये तीन जब तक हम लोगों को मालूम नहीं रहेगा नहीं, तब तक उसका हम लोग एक्चुअल पोजीशन नहीं मालूम कर सकते। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 3 होगा, 2 नहीं होगा।
समझ गया ना। टू जो कह रहा था, मान लो एक्स वाई तो ठीक है, एक्स वाई से तो वो लोकेशन, उस पॉइंट पर वो कितना एंगल पर वो माने उसका पोजीशन एंगल घूमने के लिए कितना चाहिए उसको, नहीं तो वो चीज तुमको पता करना होगा कि भाई कि इसका मिनिमम कितना, इसका पोजीशन हमको पता करने के लिए मिनिमम हमको कितना चाहिए। तो मिनिमम तुमको एक्स चाहिए कि उसका एक्स डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, वाई एक्सिस, और वो कितना एंगल पर है। तो ये तीन चाहिए, एक्स ए चाहिए, वाई ए चाहिए, थीटा चाहिए, तभी तुम उसका एक्चुअल पता कर सकते हो। नहीं तो अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग अब क्या करते हैं, इस लिंक को हम लोग एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर देते हैं, नहीं तब कितना है, तो उसका कितना हो जाएगा, उसका लिंक 1 है, देखो लिंक 1 है क्या है, एक्स एक्सिस तुम्हारा लिंक 1 है। लिंक 2 जो है वो मूव कर रहा है, स्पेस में मूव कर रहा है। अब उसको उस लिंक 2 को लिंक 1 से हम लोग ज्वाइन कर दिए। If there is an assembly of link 1, link of n link having, they have 3, अच्छा छोड़ो। In other words, it can be stated that the unconstant rigid link in the plane has 3 degrees of freedom. 2 of these are become translative motion and third one due to angular motion. अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे तब क्या होगा, नहीं। और क्या कहता है कि अगर मान लो कि एक लिंक है, ठीक है ना, एक लिंक मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, तो कितना होगा, 3 होगा। अगर एन लिंक है, इफ देयर इज एन असेंबली ऑफ एन लिंक, दे हैव कितना, अगर एन लिंक्स मूव कर रहा है, नहीं एक्स वाई प्लेन में, नहीं या स्पेस में मूव कर रहा है, तो कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, एक लिंक है तो 3 होगा। एन लिंक अगर मूव कर रहा है तो कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3n होगा। तो सो इफ देयर इज एन असेंबली ऑफ एन लिंक, they have 3n degree of freedom before joining their ends, नहीं। अब क्या करते हैं, if point A on link 2 is hinged with link is point C on the fixed link 1, the two variable x a and y a for point A will be fixed. So the position of link 2 will 9 be determined by single variable theta only, नहीं। It means that the link 2, which has earlier having 3 degree of freedom, now it will have only 1 degree of freedom. अब क्या देखो इसमें क्या है कि लिंक 2 को पहले तो स्पेस में मूव कर, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा था तो 3 था, ठीक है। अब क्या किया है कि लिंक 2 को लिंक 1 से देखो मैंने उसके पॉइंट जो है ए को पॉइंट सी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, हिंज कर दिए, हिंज ज्वाइनिंग हो गया। हिंज मतलब क्या, तब उसका कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उस लिंक 2 का, बोलो। कोई बोलो ना, किताब तुमको तो भेजे भी है, भेजे मटेरियल भी, देख के भी तो बोलता है कि कोई भी अगर लिंक है, लिंक अगर स्पेस में मूव कर रहा है तो उसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अगर उसी लिंक को अगर किसी दूसरे जो फिक्स लिंक है उसके साथ अगर हिंज कर देते हैं तो वो लिंक का जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 वेनिश हो जाएगा। अब क्या बचेगा, ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज तो माने क्या, किसी भी लिंक अगर फ्री है तब तो 3 होगा, नहीं अगर वो किसी के फिक्स लिंक के साथ उसको ज्वाइन कर दिए तो उसका 2 जो लिंक है, 2 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वेनिश हो जाएगा, ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम तब हो जाएगा उसी लिंक का। अब क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1, दैट इज ओनली थीटा, माने कितना एंगल पर आप घूम रहा है वो थीटा पता हो तो उसका हम लोग पोजीशन पता कर सकते हैं।
कि उस लिंक का पोजीशन क्या है, दैट इज ओनली अगर थीटा मालूम हो। नहीं तो ओनली वन वेरिएबल जो है थीटा इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ लिंक 2। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ लिंक 2 क्या हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा। नहीं, so we have assumed that a mechanism having n links means one of the links to be fixed, so the number of movable link in the mechanism is n minus 1। नहीं, and the total number of degree of freedom will be क्या हो जाएगा, अगर मान लो if there is an assembly of n links, they have 3n degree of freedom before joining their ends. If point A on the link 2 is hinged with point C on the fixed link 1, the two variable xa and xy for point A will be fixed. The position of link 2 will now be determined by a single variable theta only. It means that link 2, which was earlier having 3 degree of freedom, now it will have only 1 degree of freedom. So it shows that degree of freedom is lost by 2 for every lower pair in the mechanism. And so we have assumed a mechanism having n links. And since one of the link is to be fixed, so the number of movable link in the mechanism is, अब मान लो कोई क्या है, कहता है कि कोई मैकेनिज्म है, ठीक है ना, उस मैकेनिज्म में हम लोग क्या करते हैं कि एक लिंक को फिक्स कर दिया, ठीक है ना, माने क्या एक लिंक जो है वो मूव नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ मूवेबल लिंक कितना हो गया, n लिंक है, एक फिक्स हो गया, तो मूवेबल लिंक n-1 हो गया। तो वही कहता है कि मूवेबल लिंक इन द मैकेनिज्म n-1 एंड द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी कितना हो जाएगा। तो जब एक लिंक मूव करता है नहीं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। तो इसमें क्या है कि 3 जो है आपका n-1 लिंक जो है मूव कर रहा है, एक लिंक तो फिक्स कर दिया, तो n-1 लिंक जो है वो मूव कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज्म हाउ मच, हाउ मेनी, कितना होगा उसका, 3 into n-1 हाँ 3 into n-1 बोलो कि n लिंक है, मैकेनिज्म में n लिंक है, n में एक फिक्स हो गया, एक फिक्स है, तो उस मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम उस मैकेनिज्म में कितना होगा, एक फिक्स है, तो एक फिक्स हो गया, टोटल नंबर ऑफ मूवेबल लिंक कितना हो गया n-1, और डिग्री एक लिंक जो मूव करता है तो 3 होता है, n-1 लिंक मूव कर रहा है तो 3 मल्टीप्लाई, वही कहता है n-1, the total number of degree of freedom will be 3 into n-1 because they are connected to any other link। नहीं, वो क्या है कि कोई भी लिंक से कनेक्ट करने के पहले नहीं उसका जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3 into n-1। अब कहता है कि let P is the number of simple hinges in the mechanism। Hinges are those links which connect two links। hinge connect क्या है, तो hinge joint मतलब क्या, joint है लेकिन मूव करता है नहीं, तो P नंबर ऑफ सिंपल hinges in the mechanism है, तब क्या होगा, an equation to determine the degree of freedom of mechanism can be written as, तो degree of freedom of mechanism क्या होगा, बोलो, जब क्या है कि कोई मैकेनिज्म है, समझो उस मैकेनिज्म में एक लिंक को फिक्स कर दिया, अब जब फिक्स कर दिए लिंक को
तब टोटल मूवेबल लिंक हो जाएगा n-1। अब n-1 लिंक मूवेबल है, लेकिन क्या है, ज्वाइंट नहीं है, फिक्स नहीं है, ज्वाइंट नहीं है। तब उस मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा वो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक लिंक में 3 रहता है, तो n-1 लिंक में 3 इंटू n-1 होगा। अगर नंबर ऑफ ज्वाइंट उसमें जो है नहीं, हिंजेज जो है p है, सिंपल हिंजेज। नंबर ऑफ ज्वाइंट p का मतलब यहाँ ज्वाइंट में हिंज ज्वाइंट है। अगर p है तो एक को अगर ज्वाइंट कर देते हैं, अभी हम लोग देखे हैं ना, एक लिंक को अगर ज्वाइंट कर दिए दूसरे लिंक से, नहीं हिंज ज्वाइंट कर दिए नहीं, तो उसमें क्या है कि दो क्या है कि 2 वेनिस हो गया, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें अगर p हिंजेज को p हिंज करते हैं, हिंज ज्वाइंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो p को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना वेनिस हो जाएगा। तो इसलिए f इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू n-1 माइनस 2p, where f इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, n इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स हो जाएगा, एंड p इक्वल टू नंबर ऑफ लोअर पेयर और सिंपल हिंजेज। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज क्या है, बैच इक्वेशन। सो f इक्वल टू अगर 1 हो, f1 मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 हो जाए, जो मैकेनिज्म इज नोन एज सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। f2 है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, f0 है द असेंबली इज नोन एज स्ट्रक्चर एंड देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक। f-1 अगर है और लेस है, indeterminate structure, most of the mechanism available of a single degree of freedom. If f equal to 1, then the above equation can be written as f अगर 1 हो जाए, f मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाए, तो 3 इंटू n-1 माइनस 2p, सो 2p माइनस 3n plus 4 equal to 0. This equation is known as Grubler's equations. नहीं, अगर क्या है कि ये क्या है, इसमें क्या है कि this can so if h is the number of higher pair, p क्या है, number of lower pair, where p is the देखें कि number of lower pair, अगर number of higher pair भी उसमें हो, कोई भी मैकेनिज्म है जिसमें लोअर पेयर और हायर पेयर, अगर h अगर हायर पेयर हो, if h is the number of higher pairs, since the higher pair reduces the degree of freedom by 1, the degree of freedom of mechanism can be determined by the equation. So f equal to 3 into n-1 minus 2p minus h. h equal to क्या है, नंबर ऑफ हायर पेयर। तो देख लेंगे कि नंबर ऑफ हायर पेयर कितना है। अगर एक हायर पेयर होगा तो उसमें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगा, रिड्यूस कर देगा। अगर h होगा तो h कम हो जाएगा। नहीं, if one link of mechanism move without causing any movement in the mechanism, then the link is said to redundant degree of freedom. Refer equation इतना, where link 3 can slide without causing any movement to the mechanism. This link presents the redundant degree of freedom. The equation can be written as नहीं, so f equal to 3n-1 minus 2p minus h minus r, where r is the number of redundant degree of freedom. So these are the degree of freedom. बहुत सारे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बारे में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। कितना टाइम हो गया तुम्हारा? तो 9-11 हो गया। 9-11 हो गया तुम्हारा टाइम हो गया, ठीक है ना। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में क्लियर हुआ? यस सर। एक आध गो प्रॉब्लम और सॉल्व करोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम में,
अब जा करके क्लियर। दो जो तुम्हारा इक्वेशन दिया है उसको सर्टिफाई करके देखो। सबसे पहले तुमको वो जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म में नंबर ऑफ आपका लिंक कितना है, नंबर ऑफ पेयर कितना है, नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना है, ये तुमको अगर निकालना मालूम हो गया तब पुट करके देखो, तब मालूम हो जाएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें कितना होगा। नहीं उससे तुम्हारा निकल जाएगा। दोनों इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन तुम्हारा ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम का इक्वेशन तुम्हारा क्या है। सिंपल इक्वेशन तो ये है कि एफ इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस 1 माइनस 2। अगर n नंबर ऑफ लिंक मालूम है, p नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ लोअर पेयर अगर मालूम है पुट कर दो तो तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम हो जाए। दूसरा अगर उसमें हायर पेयर भी है तब उस इक्वेशन में क्या हो जाएगा कि f इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस 1 माइनस 2p माइनस h नंबर ऑफ हायर पेयर भूल कर दो तो f का वैल्यू मालूम। अगर उसमें रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है r तो क्या हो जाएगा f इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस 1 माइनस 2p माइनस h माइनस। ये फॉर्मूला याद रखो तो तुमको मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आएगा। पहले तो सबको पहले तुमको ये मालूम कि लिंक कौन है, पेयर कौन है, ज्वाइंट कौन है, ये सबको मालूम करना पड़ेगा मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो ये तुम मालूम कर लोगे तब तुम्हारा निकल जाएगा। इसमें टाइप्स ऑफ ज्वाइंट भी है, वो बताएंगे दूसरे, क्योंकि ज्वाइंट का भी जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो ज्वाइंट भी थोड़ा बताना होगा। तो कल तुमको ज्वाइंट भी बताएंगे और इसके बाद हमारा उधर चलेंगे। इसमें एक आध 2-3 लेक्चर और दूसरे नहीं तो क्या रहेगा, डिग्री ऑफ डिटरमाइन द मूवेबिलिटी और डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही चीज। ठीक, ओके।